Welcome you all. But it was really surprising after my session. I got so many queries, or if I say the complaints, not the queries, the complaints. When most of you people came to me and said, we don't get time to do any exercise or yoga or brisk walking or dancing, swimming, aerobics. It's very difficult for us to perform this because we don't get time. We have to go to office. We have to execute other responsibilities. We start in the morning at around 6 and sleep around 1 midnight. When will get time to do exercise? When will get time? And yes, sometimes we get time, but at that time we are stomach full. And in full stomach, it's not advisable to do the exercise. And second thing, you said to have a good health, it's a necessary to be thankful. Our life is so stressed, how we can be thankful. Everybody is jealous of each other. Everybody is pulling the leg of the another. How we can be thankful? This word is, I don't know. What you say, it is easy to preach, but execution is most difficult. Say, if even in India, 40% adults are suffering from some diseases or disease, but I don't think even 10% people are doing daily exercise or yoga, in spite of a great and on the spot advertisement by the government or celebrating an international yoga day. On that day, one can go for exercise. Okay, we start even the exercise after 2-3 days. We don't get into again. It's so boring. Just brisk walking, not producing anything. There were so many complaints. But remember, it's your life. And for your life, you have to take out 1 hour at least for yourself. The more the exercise or the yoga you will execute, more thankful you will be. Doing exercise and being thankful both complement each other. Or you just be thankful, you will get time to do the exercise. Or do the exercise, you will be thankful. All right, even if you have so many complaints about doing exercise and being thankful, it is alarming. But even then, the solution is given in Aarti. If you don't want to do exercise, or you don't want to be thankful, there is another solution also. If you can do that, if you will do that, automatically you will be doing exercise. Automatically you will become thankful. आरती में आगे कहा गया है, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। Nothing to worry. You don't want to do the exercise? All right. If you don't want to be thankful, all right.
there is another solution which will trigger thankfulness, which will trigger a mindset or a habit to do the exercise daily. What it's saying, the आरती में क्या कहा गया है? मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। अब जब मैं सेवक की बात करता हूं तो सबसे बड़े सेवक कहां दिखाई देते हैं? श्री हनुमान। श्री हनुमान की सेवा की कल्पना करना भी हम सबके लिए मुश्किल है। आप सबको याद होगा संजीवनी लेकर आना उनका, और यह उनका टास्क था कि किसी भी तरह से मैं सूर्य उदय से पहले पहुंचूं, और वो पहुंचे। मैं सेवक तुम स्वामी। पर यहां यह बात कह के मैं बात को किसी दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहता। यहां जो प्रमुख बात है वो कहना चाहता हूं, और वो प्रमुख बात यह है कि भगवान स्वरूप श्री हनुमान जी ने कहा, जो मुझे सुबह ध्यान करता है उसको भोजन भी नहीं मिलता। क्या बड़ी बात कह दी उन्होंने। जो इतने बड़े बड़े काम एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली पूजनीय हो गए, लंका दहन करके आए और संजीवनी लेकर आए, सीता जी को खोज निकाला। इससे ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस कोई हो नहीं सकती, और उस परफॉर्मेंस के बाद व्यक्ति का कद अपने आप बढ़ जाता है। वैसे तो हनुमान जी स्वयं अपना कद बहुत बढ़ाने में क्षमता रखते थे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अभिमान आना और कद का बड़े हो जाना, और कद का बड़े हो जाना इवन अपने स्वामी से भी स्वाभाविक है। इसमें कुछ गलत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज सेइंग, सिर्फ अगर नाम लिया जाना चाहिए तो मेरे स्वामी श्री राम का मेरा नाम मत लो। दिस इज ए एक्सट्रीम ऑफ बीइंग एट सर्विस। इससे बड़ी समर्पण, इससे बड़ा सरेंडर आज से पहले किसी कथा में, किसी जीवन में वर्णित नहीं। मेरा नाम लेने से, सुबह मेरा नाम लेने से भोजन भी नहीं मिलता, ऐसा कहा उन्होंने। मेरा नाम मत लो। आप एक बार हनुमान जी का सुबह नाम लेकर तो देखो, आपको कितना फल आहार और कितना भोजन और कितना स्वादिष्ट व्यंजनों की लाइन लग जाएगी। पर वो व्यक्ति अपने मुख से क्या कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि सिर्फ अगर नाम लेना है तो मेरे स्वामी श्री राम का नाम लो। वट आर आई एम डूइंग, आई एम डूइंग फॉर हिम। वट आर आई एम डूइंग, आई एम डूइंग विद द पावर ऑफ हिम। वट आर आई एम डूइंग, all is being surrendered to him. No result is going to give impact on me, on my mind or on my brain or on my intelligence. आप समझ पा रहे हैं? समर्पण, ऐसा ही समर्पण आरती में कहा गया है। भगवान के प्रति कह दो तुम करुणामयी हो, तुम मुझे स्वीकार कर लोगे, मैं जानता हूं और मैं तुम्हारा सेवक हूं। ये भावना अपने में ले आओ। अब आप उठोगे तो उसके लिए उठोगे, आप सोओगे तो उसके लिए सोओगे, आप ऑफिस जाओगे तो उसके लिए जाओगे, आपकी ऑफिस में प्रशंसा होगी तो उसके लिए होगी, आपकी कोई गलती पकड़ी जाएगी या आपसे कोई गलत काम होगा, उसका होगा। नो प्रेशर ऑन योर माइंड, नो एंजाइटी। ना मैं सुख में हूं ना मैं दुख में हूं, ना आज सुख है ना दुख है। सिर्फ कुछ है तो सेवा भाव है, समर्पण है, सरेंडर।
कंप्लीट सरेंडर, नो ईगो। जो कुछ है मेरे प्रभु का है। ये सेवा भाव, तुम करुणा के सागर, उसकी तरफ देखो तो एक बूंद नहीं समुंदर। तुम करुणा के सागर, और सागर किसके? करुणा के। करुणा, प्रेम, दया। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। पालना तो तुम करने वाले हो, मैं कौन हूं? मेरे करने से क्या होता है? मैं ना रहूं तो जिनको मैं समझता हूं मुझ पे आश्रित हैं, वो शायद जैसे आज जी रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे ढंग से जी सकेंगे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम ही पालना करने वाले हो, मैं कौन हूं? मैं तो स्वयं एक पग नहीं रख सकता। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख। वो पहले ही अपने स्वामी का वर्णन, फिर अपना वर्णन। मैं मूर्ख। सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं मूर्ख हूं। आप कितने इंटेलिजेंस पा जाएं। आपने देखा होगा सिकंदर को भी गए खाली हाथ बाहर, मृत्यु पे पास आते ही समझ आ गया मैं मूर्ख, खलकामी। खलकामी माने सारे गलत काम ही करने वाला। मुझसे सही काम होने की उम्मीद रखना भी मत प्रभु। मैं सेवक, तुम स्वामी। कृपा करो भरता। मेरा भरण पोषण करने वाले प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करो, ये जानते हुए कि भी मैं मूर्ख हूं और मैं सब गलत काम करने वाला हूं। उसके बाद भी अगर तुम स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारी करुणा है। इसीलिए पहले एक कैंडिडेट जिसको एनरोल रखने के लिए एप्लीकेशन आया है, वो पहले ही स्वीकार कर रहा है कि मैं मूर्ख हूं, मुझसे गलती होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम करुणामयी हो, तुम भरे हुए हो एक ओशन, करुणा के ओशन से, दया के ओशन से। इसलिए तुम मुझ मूर्ख को भी स्वीकार कर लोगे। इसलिए प्रभु तुम्हारे सामने एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लो। जहां सेवा भाव आ गया, जहां दास्ता आ गई, जहां सरेंडर हो गया, वहां क्या हार क्या जीत। जीत है तो उसकी, हार है तो उसकी, ऐसा भाव आ गया। अब आप चाहो तो थैंकफुल ना हो। थैंकफुल तो तब होने की जरूरत है जब मेरी आइडेंटिटी अलग है। अब तो मैं दास हो गया, मेरी तो जीत ही नहीं है। जीत हुई तो उसकी, मेरे स्वामी की। हार हुई तो उसकी, मेरे स्वामी की। मेरे से कोई गलती हुई, हर्जाना वो भरेंगे, पेनल्टी वो भरेंगे। मेरे को कोई पेनल्टी भरनी नहीं है। मैंने कोई अच्छा काम किया तो उसका जो रेवेन्यू है, रिवार्ड है, वो उसका। मैं तो दास हूं, मैं तो सैलरीड भी पर्सन हूं, मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूं। मैं उसका दास हूं, केवल दास। अब क्या? अब क्या? ना हार मेरी, ना जीत मेरी, ना दुख मेरा, ना सुख मेरा। अब मन विचलित नहीं होगा। कैसे? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप 500 के, 1000 के फूल खरीद के लाएं और एक 50 रुपए का मटका खरीद के लाएं। फूल आप 1000 रुपए के लाए हैं, मटका आप 50 रुपए का लाए हैं। घर पे आते ही मटका फूट गया, आपको बड़ा दुख होता है। 50 रुपए का मटका फूट गया, बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि इस मटके ने, संभावनाएं थी मटके के अंदर कि वो 2 साल तक कम से कम चलेगा। साल तो चलेगा ही, 6 महीने तो चलेगा ही, कुछ 3-4 महीने तो चलेगा ही। फूल तो आपको मालूम ही है शाम तक मुरझा जाने वाले हैं। बस कोई दुख नहीं है। 1000 रुपए के फूल मुरझा गए, कोई दुख नहीं है। कंप्लीट सरेंडर, दास्ता।
एक बार हो जाने के बाद सारे दुख खत्म। लोग मेरे लिए ताली बजाते हैं, वो मेरे लिए ताली नहीं बजा रहे, उसके लिए ताली बजा रहे हैं। लोग मुझ पर अंडे फेंक रहे हैं, मुझ पे कोई अंडे नहीं फेंक रहा। आज जो स्रोत था प्रवचन का, आज जो स्रोत था टीचिंग का, उसकी तरफ से आया ही नहीं। ये उसकी गलती है। जब प्रशंसा हो रही थी तो उसका वरदान था, उसकी कृपा थी। जब समुद्र की लहरें ऊपर की वेव में चलती हैं, आदमी कहता है देखो मैंने कितने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए। और जब वो वेव नीचे आती है तो आदमी कहता है ए भगवान ये क्या कर रहे हो? मैं इतना इंटेलिजेंट, इतना परफॉर्मिंग, और ये मेरे साथ क्या भेद हो रहा है? ना, वेव ऊपर की है तो उसकी, वेव नीचे है तो उसकी। मैं केवल दास हूं, मैं केवल एक सेवक हूं, मैं केवल एक फॉलोअर हूं। बात खत्म। अब ना दुख है ना सुख है। पहली पंक्ति में जब हम नए नए क्लास में आते हैं तो सुख दुख में होते हैं, लेकिन जब पंक्तियां बढ़ती हैं, क्लास बढ़ती है, स्टैंडर्ड्स बड़े होते हैं, सुख दुख से पार। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। कहने को कुछ रहा ही नहीं, रह गया तो सिर्फ एक पीस। हम योगा करते हैं, हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं ताकि पीस आ सके। हम थैंकफुल होते हैं तो पीस आ सके। हम सेवक हो गए, पीस अपने आप आ गई। अब बॉडी को जरूरत होगी तो वो अपने आप एक्सरसाइज करने जाएगी। बॉडी को थैंकफुल होने की आवश्यकता ही नहीं है। बॉडी एक पीस में है। हम एक्सरसाइज या थैंकफुलनेस दोनों स्थितियों से बाहर हो गए, और ये बाहर होना ही भगवान को कंप्लीट सरेंडर करना है। भगवान ने गीता में कहा है जो तुम्हारे कर्म है वो मुझ पर छोड़ दो। उसका सुख दुख को अपने ऊपर प्रेशर मत लो। जहां प्रेशर खत्म हुआ, एक कथा और कह देता हूं। एक भेड़, उसको अधिक से अधिक व्यंजन खिलाओ, उसको बादाम खिलाओ, उसको अखरोट खिलाओ, उसको मेवा मिश्री खिलाओ, घास की बात नहीं कर रहा, और शेर के सामने बांध दो। कितनी कहानियां आती। एक कहानी अभी मेरे को ध्यान आ रही है। एक तरुण, एक टीनेजर इतनी ताकत रखता था कि भी हाथी की पूंछल पकड़ के बैठ जाता था तो हाथी पानी पीने आता था तो पानी नहीं पी पाता था। राजा का हाथी था। मंत्री तक बात गई। महावत ने कहा कि एक तरुण है, एक टीनेजर है, वो उसके अंदर इतना बल है, इतनी ताकत है कि वो हाथी को भी रोक लेता है। हाथी से भी अधिक बल है उसमें। मंत्री ने कहा जाओ उसके घर में, उसको कहो कि उसको कोई टास्क दें जिससे उसको फिक्र हो, चिंता हो कि मेरे को ये काम करना है। उसको कोई टारगेट दो, उसको कोई टाइमलाइन बनाओ। अपने आप उसकी पावर कम हो जाएगी और हम उसको सजा नहीं दे सकते उसके बल की वजह से। उसको चिंता लगा दो। जहां चिंता लगी, जहां पीस हटी, वहां पे आपकी पावर कम हो गई। मैं सेवक तुम स्वामी। जहां हम सेवक हुए वहां सब चिंताएं गई, वहां हार जीत का सुख दुख गया, वहां रह गया केवल दास्ता। एक ही सिमरन उस प्रभु का, एक नाम, सिर्फ उसका नाम। तुम करुणामयी हो, तुम मुझे स्वीकार कर लो। स्वीकार करने की एक एप्लीकेशन लगा दो, फिर आप मालामाल हो गए, फिर आप दुनिया के सबसे बड़े राजा हो गए। आज समय फिर आपके सामने आके खड़ा होके कहेगा बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। एक बार दास बन के तो देखो। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता।
हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।